Hello and welcome to the video. Today we have Sachin Kumar Singh with us, who is working as a consultant in top consulting firm. He has done his MBA from prestigious IIM Raipur and his graduation from NIT Hamirpur. So in today's video, we will be discussing with him about life in consulting and other aspects of how a person can become a consultant in India. So welcome sir, कैसे हैं आप? Yeah, thank you, man. Thank you for nice introduction. I am good. How are you? I'm also good. And first of all, I would like to thank you for giving us your time from your busy schedule. So, I would like to you to tell our viewers something about yourself. How was your journey like to being a consultant, and what other things you would like to tell our viewers? Okay. So, hello viewers. I am Sachin Kumar Singh. So I did my journey. I would say like starts when I did my graduation in 2016 from NIT Hamirpur, and then I was working in a infrastructure company, a Europe-based infrastructure company, where I was working on in Bangalore. So along with that, I was also preparing for some examinations. So in 2017, I got recommended by Service Selection Board, and but I couldn't join due to some medical reasons. After that, I got more inclined towards finance domain, as in that organization I started working in FP&A, financial planning and analysis. So I took the decision to do my MBA. So I did my MBA from IIM Raipur in 2022 in finance and operations. I also did my CFA in November 2022, level one, and I've been working in my current consulting company since 2022. So right now, the kind of work which I'm doing is aligned to the work which I was doing pre MBA, like more related to the large capital projects. So, sir, you are having a very diverse background, and so I hope we will be having a very good discussion today. So the first question I would like to ask you about is how the life in consulting jobs are. So can you please elaborate on that to our viewers? So, talking about consulting, I would say like there are multiple dimensions to consulting. So you can be a consultant related to industry, like you can be a consultant for automotive industry, you can be a consultant for life sciences. So it depends on the kind of domain in which you are in. And then I would say also we have a platform-based consulting, like we have consulting related to PIMS, we have consulting related based to ERP solutions. So a lot depends on that. And if I would say life in consulting, I would say that yeah, it's a hectic schedule because you have to directly interact, uh, you have to directly interact with client. You have to understand their requirements. So you have a lot of travel, which can involve traveling to client locations and understanding those requirements. And at the same time, you have to work along with a larger team in your in background to develop the solution as such. So I would say it's a good learning experience for youngsters who are looking to make an impact, or who have got that industry exposure as well and now want to switch to a job where they can make more impact. So I would say all in all it's good, but yeah, it comes with a burden that it's hectic and you have to work for longer hours and for the weekends as well. So having talked about the various kinds of consultings, so सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सबसे पहले जो व्यूअर्स जो यंग व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं जिनको नहीं पता है कि कंसल्टेंट क्या करता है, तो सर क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बेसिकली ये कंसल्टिंग है वो है क्या और एक कंसल्टेंट करता क्या है एक्चुअली में? ओके, नाइस क्वेश्चन। मैं ये कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए उसके पास सॉल्यूशन है कि वो एक डिफरेंट डिफरेंट ऑटो को आपस में कनेक्ट करके उन्होंने ये सॉल्यूशन बनाया कि हम डिफरेंट ऑटोज को बुक कर देंगे और एक राइड शेयरिंग चल जाएगी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो अब वो कंपनी ताकि अपने कोर ऑपरेटिंग मॉडल जिसमें वो ऑटोस को क्रिएट कर रहे हैं उस पर फोकस करें। अब बाकी जो काम है, जैसे मान लीजिए उनको एक ऐप डेवलप करनी है, या फिर मान लीजिए उनको अपना उन ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाना है, या फिर आप मान लीजिए कि उनको अपना पूरा फाइनेंस हैंडल करना है, तो कोई भी कोर काम के पीछे बहुत सारे सपोर्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कोई भी टूल है या कोई भी, तो वो उस काम को आउटसोर्स कर सकते हैं।
अब वो आउटसोर्स किसको करेंगे? बिकॉज देखिए, वो अपने नीचे फील्ड में, जिसमें उन्होंने बोला कि उनका एक ऑटो का प्लेटफॉर्म है, वो वहां पर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं यूजर्स के लिए। अब वो बाकी काम जो कि दूसरी कंपनी बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इजिली कर सकते हैं, दे आउटसोर्स इट। सो दैट वर्क इज जी आउटसोर्स टू सम कंसल्टिंग फर्म्स या टू सम टेक फर्म्स। और वहां पर किसी टेक फर्म को आपने आउटसोर्स किया, तो फिर वहां पर एक कंसल्टेंट बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि एक्चुअली वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसका सोल्यूशन बनाएगा कि ये सोल्यूशन इस तरीके का हो सकता है। तो ये तो देखिए मैंने बहुत छोटी एक ऑटो प्लेटफॉर्म के लिए बताया कि मान लीजिए कोई अब एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है हु आर डेवलपिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग दैट। तो अब उनका उनका एक प्लांट होगा, उनके एम्प्लॉयज होंगे, उनके मार्केटिंग के ऑफिसेस होंगे या उनके मल्टीपल कॉर्पोरेट ऑफिसेस होंगे। तो ये सब जी जब चीजें हो रही हैं, तो फिर वो काम के पीछे जो उनका पूरा सेटअप है, उसको एक कंसल्टिंग फर्म उनके लिए प्रिपेयर कर सकती है, ताकि दे कैन फोकस ऑन देयर कोर वर्क एंड देन दे कैन एक्चुअली गेट दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो कंसल्टिंग फर्म्स आर कैन प्रोवाइड देम दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर फर्म्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर अलाइंड विद द आउटर वर्ल्ड। जैसे मान लीजिए बाहर एआई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, अब कंपनी बना रही है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मान लीजिए उनका एआई से उतना डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, तो कंसल्टिंग कंपनी कैन एक्चुअली लेवरेज दैट एआई फॉर देयर क्लाइंट्स। तो वहां पर कंसल्टिंग कंपनी हेल्प दोस कंपनीज टू जनरेट मोर वैल्यू। तो इसमें यह है कि कंसल्टिंग कंपनीज के बंदों को दे हैव टू बी मोर डायनेमिक, कि भाई जो भी बाहर टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रही है, या अभी हम जो है किस तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, या किस आईओटी या कोई जी भी आप टेक्नोलॉजी बोल लीजिए जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, जी। तो फिर हम उसको कैसे दूसरी कंपनी लगा के उनको फायदा दे सकते हैं। तो वो वाली चीज कंसल्टिंग कंपनीज करती हैं या कंसल्टेंट्स करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने बताया वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आपने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। सो फॉर द व्यूअर्स, सर मैं चाहूंगा कि अगर वो कोई व्यूअर ऐसा है जो हमें देख रहा है और वो कंसल्टिंग में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या पाथ रहना चाहिए उसको? बेसिकली समझिए कि अगर वो आज 12th में है या वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या पाथ रहना चाहिए? वो कैसे कंसल्टिंग में आ सकता है? Okay. तो देखिए, कंसल्टिंग में आने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री एक्सपोजर लेके आते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन करी एंड देन यू आर वर्किंग इन सम डोमेन। जैसे आप मान लीजिए आपने बीकॉम या बीए किया या जो है बीबीए किया, और आप डोमेन में हैं विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, विच इज रिलेटेड टू यू नो फाइनेंशियल मार्केट्स एज सच। तो आप उस तरह की कंसल्टिंग में जा सकते हैं, जहां पर हम कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। आपने अगर बीटेक किया हुआ है, आप किसी टेक्निकल फील्ड में गए, जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग करा और आप हाईवेज और रेलवेज प्रोजेक्ट्स में गए, तो वहां से फिर आप कंसल्टिंग कंपनी जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। अब जाने के लिए जब आप इंडस्ट्री में हैं और फिर आप कंसल्टिंग में आप काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली भी मेरे काफी कोलीग्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद किसी इंडस्ट्री में थे and फिर वो यहाँ पर कंसल्टिंग में मूव करके कुछ एमबीए के पाथ के थ्रू आते हैं कि दे गो एंड कंप्लीट देयर एमबीए एंड आफ्टर 2 years ऑफ एमबीए दे जॉइन अ कंसल्टिंग कंपनी। And it is also possible that from some good institutions, the consulting companies directly go and take from graduation candidates. तो उनको फिर वो हम्म। एक जूनियर एनालिस्ट पोजीशन पर लेते हैं एंड देन दे ग्रूम देम टू get that get that exposure on a different path. तो there are multiple paths, but हमेशा ये है कि जो जैसे टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो दे लुक फॉर अ स्टेलर एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आपके 10th में 12th में क्या परसेंटेज है, क्योंकि एमबीए कॉलेज में भी वो मैटर तो करते ही हैं एनीवे। जी तो आपके 10th में 12th में क्या परसेंटेज है, फिर आपके ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेजेस हैं, और फिर अगर आप 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, तो दैट आल्सो गिव्स यू एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। तो फिर डूइंग एमबीए इज डेफिनेटली हेल्पफुल। अगर आप एमबीए करते हैं तो दैट इज हेल्पफुल। तो देयर आर मल्टीपल पाथ्स, but common across them is that if you have good I would say that if you have good industry exposure and you have got a good academic background, you can easily get into a consulting firm and then work there. तो सर, एज यू हैव टोल्ड अस दैट यू हैव आल्सो डन सीएफए लेवल 1, तो सर मैं बेसिकली ये पूछना चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि जो सीएफए है वो है क्या, और वो किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं इंडिया के अंदर? Okay, तो CFA stand for Chartered Financial Analyst।
तो ये एक तरीके का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और जिन लोगों को अपना करियर इन फाइनेंस डोमेन बनाना है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो सकता है, हेज फंड मैनेजर हो सकता है, या म्यूचुअल फंड मैनेजर हो सकता है, या फिर एफपीएनए में भी हो सकता है, ऑल्दो सीए ज्यादा लाइन होते हैं वहां पर। तो इस तरह के जो सारे रिलेटेड फील्ड्स हैं, इनमें आपको अपना करियर बनाना है, तो यू कैन परस्यू दैट। तो आप देखेंगे काफी सारे पीपल हु कम्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, दे परस्यू सीएफए। काफी सारे सीए भी होते हैं, वो सीएफए कर लेते हैं। तो दे डीप डाइव इनटू दोस फाइनेंशियल डोमेन्स to have that kind of a leapfrog into things in the career cycle. So viewers who are fascinated by this financial world should learn about this, and it's a good thing. काफी लोग इसको ऐसे लेते हैं कि दे शुड परस्यू एमबीए और सीएफए, जैसे काफी लोगों का ऐसा क्वेश्चंस भी रहते हैं इस तरीके से। तो देखिए, एमबीए प्रिपेयर्स यू फॉर मोर ऑफ लाइक मार्केटिंग रोल, मतलब prepares you for marketing role, operations role, or HR roles. CFA is more related to finance, finance domain. तो अभी तो मैंने level 1 किया है, तो if I want to build a career more into this directions, I will definitely try for other 2 levels. तो उस तरीके का है। डेफिनेटली सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने दोनों चीजें कर रखी हैं, तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको उनके लिए क्या बेटर, मतलब चॉइस, इसमें डिफरेंसेस क्या है सीएफए और एमबीए में, और हाउ हाउ कैन यू कंपेयर बिटवीन देम, एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू टुडे इन इंडिया फॉर द व्यूअर्स? Okay, so that's a very relevant question, I would say. So देखिए, MBA is at most of the places the 2-year program. जैसे इंडिया में आप आईएम से एमबीए करें तो इट्स अ 2-year प्रोग्राम। अगर आप आईएसबी से उनका फ्लैगशिप जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वो करें तो 1 साल का है। और उस तरीके से जो तो उसमें है कि आपको अपने करियर से पूरा ब्रेक लेते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, यू टेक अ करियर ब्रेक, यू पुट इन योर 2 years or 1 year in that program, and then you pursue that. सीएफए में ऐसा कुछ नहीं है। सीएफए में इफ यू आर वर्किंग, यू कैन, आप काम के साथ भी अपना सीएफए परस्यू कर सकते हैं। ये हो गया किस तरीके का उनका टाइमलाइन है। अब हम बात करें काम पर कि किस तरीके की लर्निंग्स है वहां पे, तो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक में मार्केटिंग, ऑपरेशंस, मल्टीपल डायमेंशन, मोर जेनरिक है, जनरल मैनेजमेंट के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और आईएम में जो डिग्री भी मिलती है वो भी जनरल मैनेजमेंट की मिलती है। अब एम और सीएफए में तो एकदम क्लियर है, नाम के साथ ही चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सो दिस इज समथिंग, आप इफ यू वांट टू लैंड अप इन इन्वेस्टमेंट बैंक, और you want to go in the buy side, sell side, जो भी जिस भी साइड आप लैंड करना चाहते हो, उसमें सीएफए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वेल्थ मैनेजर बनना चाहते हैं या हेज फंड मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लाइन। अब इन टर्म्स ऑफ, देखिए, इन टर्म्स ऑफ द जॉब सैलरी विच इज आफ्टर डूइंग दैट, तो देखिए टॉप एमबीए कॉलेजेस में भी अगर आप एमबीए करते हैं तो यू कैन लैंड अप नॉर्थ ऑफ 30 और 40, और अगर आप एवरेज पैकेज देखें तो 25 और 20 का राउंड भी है जो न्यू आईएम्स है उनका, तो आप वहां पर लैंड कर सकते हैं। आप सीएफए करते हैं तो सीएफए में आप तीनों लेवल, आप 2 लेवल क्लियर कर लेते हैं, विच इज तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब। आप अपना प्रोफाइल अप्लाई करते हैं तो मेनी कंपनीज आर लुकिंग आउट फॉर दोस कैंडिडेट्स जिन्होंने लेवल 2 तक क्लियर कर रखा है, तो आप वहां आपको जॉब वहां मिल सकती है। तो देयर आल्सो यू कैन अर्न गुड। लेवल 3 is again gives you a good competitive advantage over candidates because ये वर्ल्ड वाइड है, इसकी एक्रेडिटेशन वर्ल्ड वाइड है। जैसे आप एमबीए करते हैं तो यू हैव टू टेल अ यूनिवर्सिटी मैंने एमबीए यहाँ से किया है, तो मे बी इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कॉलेज। जैसे हो सकता है कि मैं स्पेन में जाऊं और मैं बोलूं कि मैंने आईएम से एमबीए कर रखा, इट माइट नॉट साउंड दैट ग्रेट फॉर हिम। I'm not saying that कि वहां लोग नहीं जानते हैं लोग सब जगह जानते हैं आईएम्स को या फिर इंडिया के अच्छे कॉलेजेस को, लेकिन सीएफए समथिंग विच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, और उस डोमेन का वो बेस्ट एग्जाम है। तो देख लीजिए, अगर आपकी चॉइस वहां लाई करती है आप वो कर सकते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और काफी सारे लोग तो दोनों करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एमबीए में जाने से पहले ही सीएफए के 1-2 लेवल निकाल लेंगे, तो उससे क्या होता है कि जब वो वहां पर जाते हैं एमबीए करने के लिए, तो वहां पर फाइनेंस कंपनीज की शॉर्टलिस्ट में उनको आसानी हो जाती है। तो फाइनेंस कंपनी का शॉर्टलिस्ट आ जाती है, एंड देन दे कैन लैंड अप विद दोस वीसी फर्म्स।